have their names on the tickets of semi-finals. All the questions will be answered as we are going to see a mega encounter, a big match against big players. Gumteshwar Salset facing off against the team of Shaurya 11 Pernem. Going to be the strike bowler Gurushan Chikalgi aka Mendes on this bowling mark, and on the other hand Prasad Kinrekar on the non-strikers end, and a change this time, Sudan Thakur replacing Sahil Arolkar in the opening pair. Here we go, plays the call. Let's play, says the umpire. Very first delivery, Sudan Thakur plays it safely, doesn't take any risk. Sudan Thakur didn't get to play in the previous encounter, and one of the best opening batters in the whole of Govan state. Usually represents Harmal in Panchayat tournaments, and this time from his taluka, representing all the players are representing their taluka. Gumteshwar Salset, a team full of icons. Meanwhile, the first ball from a dot. Here we go, Gurushan goes yet again. Trying to go big this time, a big appeal. Umpire says it's wide, you have to bowl it again. There's no review system. Request to all the players to take a note of that. There's no review system in this tournament. This time it's wide, so finally the scorecard has started. Was trying to go outside the leg side, but this time instead he bowls it a bit wide. This time yet again was trying to glance the ball. Prasad Kinrekar between the wickets. He was calling to Sudan. And I think the ball has been deflected from the body of Sudan. So I don't think they will take another run this time. And yes, only a single there. By winning 2 consecutive games, a bit exhausted here, the team of Gumteshwar Madgaon. But still, all of the players very experienced, playing for a lot of years for their respective side. Meanwhile, a single being taken there, and now Prasad Kinrekar will come on strike. The one that presented a brilliant start in the previous match. A double-minded shot this time. Sanketh Moratskar is appealing every ball coming to his head, because he knows he needs to put some pressure on the batters. He knows those little mind games in cricket that are also required alongside your performance in the game. Meanwhile, here 3 dot deliveries. Prasad Kinrekar, that's a brilliantly executed shot there. 2 fielders, and this time they're stopping. Looking at the strikers, and up goes the finger. Lack of coordination between Sudan and Prasad has to pay the price. He has to go through the consequences. Not much of coordination, not much of calling between both of them. He fell short, and as I said, nice wicket keeping there by Sanketh Moratskar. Collects the ball, and in the second moments, the stumps are being uprooted. And here goes the first man. Unfortunately, in form of a suicidal run out. There goes Prasad Kinrekar back at the dugout. The total of 2. DJ. Loss of 1 wicket. Not a good start for Pernem. Not a start I would expect. But still, to balance out the things, Sahil Arolkar comes out in the middle. Sahil and Sudan, the duo now. Meanwhile, Gurushant, doesn't matter if it's a run out, successful in giving out a wicket for his team. This time yet again, oh no, some misfeeling being occurred in the final region there, where there was Angelo fielding. A much
awaited encounter this, because a lot of iconic players from the Goan state are currently playing in this match. Newmanen Sahil Arolkar, the one that created buzz not only in Goa but also Sindhurgarh this year in his brilliant season. And this time in the gap, will it go all the way? Slow outfield, will it stop the ball? No, it won't. The ball is stopping for no one. And finally Sudan Thakur breaks the silence and smacks the ball hard for a boundary. And with that, the boundary comes up and the first over is being completed. Scorecard becomes 8 at a loss of 1 wicket. DJ. As I said, has generated a buzz from his dream performance. This has been a dream season for him. One of the biggest championships in Goa, the Mandrem Champions Trophy, that was won by his home side. Dhruv Warriors pass him. 200 runs in a single tournament, and alongside man of the series in that, best batter of SK Jogging, and also will be trying to replicate the same form in this tournament. Will try to replicate the same rhythm in this match. Varat comes on the bowling mark. Trying to go big, fielder beneath, will beat the fielder. Yes, one fielder, second fielder, and goes all the way. Takes a bounce and run above their heads. It's all the way for a boundary. Now currently playing with the absence of Naresh Asoldekar, one that will be missed a lot because his guidance is really helpful. But today, Sahil in good touch. This time he shuffles, goes in the crease, a fielder present but couldn't reach the ball in the first occasion. But they will manage to stop the ball from going towards the fence, and only a single. And with that single, scorecard moves on towards 13 runs. And now really after, as I said, a good partnership will be essential here. Varat now conceding a boundary in the very first ball. Will really try to make a big comeback. Sudan Thakur trying to go big. Oh no, where to throw the ball? Shaurya 11 paid name must think about it. Their batters are playing really well. But only one thing is the lack of coordination that can cost them big, that can cost them the match. So they must take care of it, will be the expectation from the captain. This time he goes big, is it enough? Fielders beneath that, and this time he takes it. No mistakes done, good shot in the deep, and takes a brilliant catch. And Sudan Thakur, the big man, the pinch hitter, must go back. He was trying to break the silence of sixes, but instead finds the fielder in the deep, and long on a brilliantly judged catch there by Gurushan. And finally, they are getting rid of the much needed wicket. Sudan Thakur makes his way at the dugout. Scorecard stays still on 13, and the second man goes down. TJ. Comes in. Shaurya 11 paid name possess some players with high caliber, with high potential. If you get rid of one, another big one will replace him. And just like that, Guru Prasad Arauskar comes in the middle to accompany Sahil Arauskar. They are getting those big shots, no questions. But the fielding levels of Gumteshwar Salset making them very hard to take those quick singles and doubles, trying to pressure them.
and the captain Mateen Khan comes at the short region, coming at short extra cover. Was trying to go silly, but Sanket says no, it's not required. Trying to put some pressure on the lefty batter. Scorecard stays still on 13. As I said, cricket is not only the game of bat and ball, also some mind games in the middle will surely help you get those small victories over your opponents. This time plays it safely. Just a brilliant stroke down the offer side, and he just gets off the mark. He knows that it's a critical situation, so let's not take any risk, and he gets off the mark in the second ball. Scorecard becomes 14, and they're losing a total of 2 wickets. Sudan Thakur and Prasad Kinavekar, the 2 openers, are back in the dugout. And if we speak about the first encounter, it was a nail-biting one against Todek Tiswadi. And after that, they are playing a brilliant job here, the bowlers of Gumteshwar Salset. And I would really say it's actually a nice captaincy there by Mateen Khan in the absence of Naresh Asoldekar, guiding all the players really well. The field set, the bowling plans, the strategies in the field, he's doing it brilliantly so far. And the opponent captain Mahesh Paidkar told us how a captain must play, how a captain must play from the front in the first match, by changing the course, by giving out just a single run and grabbing out 2 wickets. Sahil Arulkar, after a very long time, will come on the strikers and yet again waiting for his time to hit out those big shots. गोलंदाजी मार्गवर सुदेश होतो सज्ज फॉरेन कडून आणि स्ट्रायकर साइडवर गुरुप्रसाद आरोस्कर. गेल्या मॅच वर थोडासा लवकर परतला होता, प्रयत्न असेल या मॅच मध्ये ते पुन्हा होता कामाने. पण बघावं लागेल या फेस ऑफ मध्ये कोणाचा होईल विजय. सुदेशचा असेल पहिला चेंडू. फील्ड सेट मध्ये आपण वाजवतात डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, एक वाइडिश लॉंग ऑन आणि त्याचबरोबर एक खेळाडू मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या अगदी मधोमध. दरम्यान एक वाईडचा इशारा येतोय आमच्या पंचांकडून. वाईडनिशी धावसंख्या पुढे वधारेल ती 15 धावांवर. नक्कीच 2 षटकानंतर 15 धावा एक अशी सुरुवात जी अपेक्षित नसेल पेणेम संघाला, कारण जर तुम्ही घुमटेश्वर संघासमोर खेळताय तर अर्थातच एक चांगली स्टार्ट ही हवी असेल. थोडासा रनअप चुकतोय, यस, आणि त्यामुळे 65 बॉल करार करतायत. गुरुप्रसाद आरुस्कर थोडस इकडे संघर्ष करतो, स्ट्रगल चालू आहे गुरुप्रसादचा. आपला नॉर्मल रिदम हा अजूनही तो शोधतोय, पण जर एकदा का तो फॉर्म आला मग मात्र या मैदानावर चौकर आणि षटकरांची आतषबाजी पाहायला मिळेल. आणि असं मी म्हटलं होतं, जर गुरुप्रसाद आरोस्करला त्याचा फॉर्म सापडला तर चौकर आणि षटकरांची आतषबाजी. पाऊस पडायला सुरू झालाय, पाण्याचा नाही तर षटकरांचा, आणि तो सुरुवात केलाय गुरुप्रसाद आरोस्करने. अखेरच्या क्षणी एक खराब चेंडू अगदी बॅटच्या मधोमध, हिटिंग द स्वीट स्पॉट अँड गोज ऑल द वे. धावसंख्या परिवर्तित 21 धावांवर, 21 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. नक्कीच वाऱ्याची जोरदार झोप एका लेफ्टी बॅटरला, अर्थात एक अनुकूल स्थिती. चेंडूला जाऊ देतो, अर्थात हा चेंडू वाईड आहे, कारण जर पाहिलं तर बराच बाहेर हा चेंडू जातोय आणि अर्थात त्यामुळे पंच हा चेंडू वाईड करार करतायत. वाईड निशी धावसंख्या पुढे वधारते ती डबल नेल्सन 22 धावांवर. 2-2/2 आपण पाहतो स्कोर बोर्डवर. गुरुप्रसाद आरोस्कर आणि साहिल आरोलकर यांनी आता जबाबदारी उचलली आपल्या संघाची, आणि ती तोलायची अगदी शेवटच्या षटकापर्यंत. पुन्हा एकदा हवेला फटका, चेंडू उंच गेलाय आणि लांब सुद्धा गेलाय, कारण पंचांनी दोन्ही हात केले धवेत समांतर. गुरुप्रसाद आरोस्कर इज बॅक इन द गेम. सलगच्या 2 चेंडू 2 मोठे फटके आणि सांघिक धावसंख्या पुढे धरली जाते ती 28 धावांवर, 28 रन्स. A force not to be reckoned with. एक अशी ताकद ज्याच्या समोर ढिलाने टाकलेले चेंडू हे अर्थात हे अशा प्रकारे बाहेर फेकले जातात.
थोड्याशा प्रेशर मध्ये अर्थात सुदेश असेल, कारण एका षटकात जर 2 मोठे फटके बसले तर अर्थात आपली लाईन अँड लेंथ शोधण्यासाठी थोडासा वेळ हा लागेलच. हुक करण्याचा प्रयत्न होता आणि गुरुप्रसादला माहिती होतं की इकडे बॉलचा संपर्क झालाय आणि बाकीची औपचारिकता पूर्ण केली पंचांनी. गुरुप्रसाद आरोस्कर 2 मोठे फटके टोलावले खरे, पण अखेरच्या क्षणी अजून एक मोठा फटका हुक करण्याचा प्रयत्न होता लॉंग लेग वरून, आणि पण त्या प्रयत्नामध्ये बॅटची लिडिंग एज आणि त्याचबरोबर यष्ट्यांच्या मागे संकेत मोरजकरचं एक चांगलं झेल. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बरेचसे पण विकेट किपर पाहिले, पण आजच्या दिवशी संकेत मोरजकर अगदी उच्च दर्जाची विकेट किपिंग, कारण फिल्डर्स बरोबर विकेट किपरचा एक खूप मोठा हात असतो कुठची विकेट प्राप्त करण्यासाठी, आणि तो हातखंड अतिशय सुरेखरित्या कामाला येतोय घुमटेश्वर सालसेट संघाच्या. धावसंख्या असताना 28, गडी क्रमांक 3, बिग फिश कॉट इन द नेट. गुरुप्रसाद आरोस्कर बॅक टू द पवेलियन. डीजे वेळ आलेली आहे की आता पेडनेम संघाच्या कॅप्टनला उतरावं लागतंय. बॅटिंग करताना बऱ्याचशा बॉलर्सच्या हृदयामध्ये खळबळ माजवली आणि बॉलिंग करताना आपल्या तालावर नाचवणारा महेश भाईडकर उर्फ मॅडी होतोय सज्ज स्ट्रायकर्स एंडवर, आणि तो जागा घेईल गुरुप्रसाद आरोस्करची. साहिल आरोलकर अजूनही प्रतीक्षेत, कधी येते आपली वेळ आणि कधी मिळते मला स्ट्राइक आणि कधी मी मारतोय मोठे फटके, जेणेकरून होईल संघाची धाव संख्या अगदी डोंगरा एवढी. पहिल्याच बॉलवर रिव्हर्स स्वीप मॅडी यू ब्युटी, आणि पहिल्याच बॉलवर आपलं खातं उघडतोय. गेट्स ऑफ द मार्क स्ट्रेट अवे, वेस्टिंग नो टाइम विथ द बाउंड्री. पहिला बॉल थोडस खराब. नक्कीच हे षटक सुदेशला एका वाईट स्वप्नासारखं वाटत असेल, कारण जो चेंडू तो टाकतोय समोरच्या बॅटरला, तो प्रत्येक चेंडू हा सीमेरेखेच्या बाहेर टाकला जातोय, आणि यावेळेस मॅडी ते करतोय एका इनोव्हेटिव्ह शॉटच्या सहाय्याने. धावसंख्या परावर्तित 32, 32 धावांवर. मोठा फटका क्रीज अगदी आतमध्ये गेला होता, शफल होऊन लेग साइडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, पण प्रयत्नात अपयश, आणि त्यामुळे पंच देतो इशारा लेग बाईसचा, कारण पॅडला आदळून चेंडू गेला होता. तो अर्थात शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजनला जोपर्यंत फील्ड झाला तोपर्यंत एक सिंगल, आणि सिंगल अशी टेबल स्ट्राइक मॅडी आपल्या जवळ, आणि त्याचबरोबर 3 षटकांची झाली आहे सांगता. 3 षटकांनंतर प्रति षटक 11ची धाव सरासरी, आणि धावसंख्या पोहोचली आहे 33 धावांवर. म्हणजे या षटकात निघाला एकंदरीत 19 धावा, ज्यामध्ये 2 मोठे फटके गुरु आरोस्करच्या बॅटमधून आणि 1 बाउंड्री निघाली मॅडीच्या बॅटमधून. तर अजूनही साहिल आरोलकर अजूनही अगदी सुरक्षितरित्या खेळतो, त्याला माहिती आहे एक मोठी पार्टनरशिप होणं हे अतिशय महत्वाचं, आणि महेश वायडकर सारखा फलंदाज वेळेपासून सेट आला ही सुद्धा एक चांगली बाब असेल शोरेलन पेडनेम संघासाठी. तर पाहावं लागेल मतीन खान आता आपल्या बॉलर्सला कसं यूज करेल, कारण गेल्या 2 मॅचेस मध्ये चांगली कॅप्टन्सी झाली आणि त्याचबरोबर तेवढा चांगला साधाही लाभलाय संकेत मोरजकर कडून. बॅटिंग असो किंवा बॉलिंग असो, कॅप्टनची भूमिका खूप महत्वाची असते आणि ती चांगली पार पाडली जाते अद्यापर्यंत महेश आणि मतीन या दोघांकडून. पण तरी सुद्धा कुठल्या तरी एका कॅप्टनला आता या स्पर्धेला नमस्कार करावा लागेल, तर तो कॅप्टन कुठला असेल? मी आधीच म्हटलं होतं ही एक मोठी लढत असणार आहे, कारण गोवा राज्यातील बरेचसे आयकॉन्स, बरेचसे तारे सितारे, रती महारथी धुरंधर या एका मॅच मध्ये पाहायला मिळतील. धावसंख्या ही झाली आहे ती 33 करंटली ऑन द स्कोर कार्ड. दरम्यान नवीन फलंदाज नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर विक्रम रोड एंड करून टाकण्यासाठी. फील्ड सेट जर आपण पाहिली तर अर्थात कन्व्हेन्शनल क्रिकेटिंग फील्ड सेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या मध्ये एक खेळाडू, एक स्वीपर मिड विकेट आणि त्याचबरोबर एक मिड विकेट, आणि त्याचबरोबर 38 सर्कलच्या आतमध्ये मतीन खान होता कॅप्टन, दिसतोय महत्वपूर्ण कव्हर रिजनला, आणि त्याचबरोबर फाईन लेग आणि थर्ड मॅन, आणि त्याचबरोबर एक लॉंग स्टॉप.
मोठा फटका. Maddie goes big this time and it's out of the park. It's a mammoth, it's a giant and it's a कलंगूट चॅम्पियन्स ट्रॉफी मॅक्सिमम. पहिल्याच बॉलवर करतो स्वागत षटकाराच्या सहाय्याने. प्रत्येक बॉलवर अटॅक करायचा आहे आणि तो तेच करतोय. धावसंख्या पोहोचेल ती 39 धावांवर. 39 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. म्हणजे जो संत गतीने चालू असलेली धावसंख्या आता बरीच भरारी घेतली आणि भरारी तर घेतली चेंडूने सुद्धा आणि ती भरारी पूर्ण करून देईल संघाला 6 धावा. मॅडी जणू काय पहिल्यापासून सेट होऊन आलाय. जणू काय मोठे फटके मारण्याची जबाबदारी तो आपल्या हाती घेतोय आणि ती जबाबदारी अगदी सुरेखरित्या हाताळतोय. सलगच्या 2 चेंडू 2 मोठे फटके. 1 ब्रिंग्स अनदर आणि याच बरोबर 40 आकडा झालाय पार आणि धावसंख्या पोहोचली आहे 45. 45 धावांवर. पहिल्या 2 षटकात जी धावसंख्या मंद होती, जी धावसंख्या संत होती, ती आता मात्र अखेरच्या क्षणी एका ज्वालामुखी सारखी आग ओकायला सुरुवात करते. पुन्हा एकदा यावेळेस लेग साइडला पुन्हा एकदा मेहमूद शेख चेंडूच्या मागे आणि काढत असेल की चेंडू घ्यायचा आहे. महेश वाईडकर प्रत्येक बॉल जर आपण जी टाइमलाईन पाहिली 4-6-6-4 डीलिंग इन सिक्सेस अँड बाउंड्रीज जे आपण एक वाक्प्रचार बऱ्याच वेळा ऐकतो ते काय असतं याचं एक चांगलं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महेश वाईडकरची ही फलंदाजी. धावसंख्या पोहोचली आहे 49. 49 धावांवर. यावेळेस कनेक्शन प्रॉपर झालं नाही त्यामुळे एक सिंगल आणि याचबरोबर 50 धावा. सांघिक अर्धशतक पूर्ण होतोय ते शोर 11 पेडनेम संघाचं. साहिल आरोलकर येतो स्ट्रायकर एंडवर आणि आता साहिल सुद्धा त्याच्या मनामध्ये एकच गोष्ट होती, केव्हाही भेटते स्ट्राइक आणि केव्हा मी मारतोय मोठे फटके. अखेरच्या क्षणी ती प्रतीक्षा होते समाप्त. मिळते संधी आणि केलंय संधीचं सोनं. दोन्ही फलंदाज आता षटकारांची भाषा बोलतायत. जणू काय बॅट बंद 6 हा एकच आकड्याचा आवाज गुंजतोय कलंगूटच्या भव्य दिव्य मैदानावर आणि धावसंख्या पोहोचते 56 धावांवर. यावेळेस वाईटचा इशारा येतोय पंचाकडून आणि विकेट किपिंग पहा. अर्थात चांगली विकेट किपिंग. मी अगोदरच म्हटलं होतं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बरेचसे विकेट किपर झाले पण संकेत मोळजकरने एक वेगळा बेंचमार्क सेट केलाय या स्पर्धेच्या विकेट किपिंग साठी. पुन्हा एकदा मोठा फटका. स्ट्रेट बॅटेड शॉट. झेल खाली फिल्डर अँड साहिल हॅज टू गो. नक्की निराश आहे. माहिती आहे की चुकीचं शॉट सिलेक्शन, चुकीचा शॉट, चुकीच्या चेंडूवर मी खेळलो आणि त्यामुळे मला आता मागे परतावं लागते. पण तरी सुद्धा इकडे चांगली गोष्ट म्हणजे की त्याने आपलं काम करून तो मागे परतलाय. धावसंख्या झाली आहे ती 57. 57 धावा आणि अजून एक गडी जातोय तंबूच्या आसरेला. पहिल्याच बॉलवर मॅडीने जोरदार बॅट फिरवली आणि पुन्हा एकदा त्याच फिल्डरकडे. सलगच्या 2 चेंडू 2 मोठे फटके.
आणि एकच खेळाडू एकच फिल्डर देवराज याने सुंदर झेल टिपलं होतं लॉंग ऑफला साहिल आरोलकरचं आणि पुन्हा एकदा महेश भाईडकरचं झेल टिपतोय तो यावेळेस मात्र स्वीपर मिडविकेटच्या रिजनला महेश भाईडकर ज्याने अर्थातच त्रस्त केलं होतं खूप त्रास दिला होता गुमटेश्वर सालसेट संघाला अखेरच्या क्षणी ते अडसर केलं जाते पूर्ण गडी अजून एक होतोय बाद आणि सांघिक धावसंख्या घडली जाते ती 57 धावांवर डीजे संघ जरी तंबूच्या आश्रयात गेला तरी सुद्धा मात्र या संघामध्ये मोठे हिटर्सची भरमार आहे प्रत्येक खेळाडूमध्ये मोठे फटके मारण्याची क्षमता ही ठासून भरलेली आणि त्याचबरोबर संपूर्ण गोवा राज्यात आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक लाडका खेळाडू नितेश गडेकर मिस्टर 360 या नावाने संबोधणारा असा हा फलंदाज होतो सज्ज स्ट्रायकर्स एंडवर पहिल्याच बॉलवर जोरदार प्रयत्न केला होता पण यावेळेस संपर्क नाही झाला कदाचित एक कमबॅकवर असू शकते नक्कीच जी दोन षटकं चांगली गेली होती गुरुशनने चांगली बॉलिंग केली त्याचबरोबर वरच सुद्धा षटक चांगलं गेलं पण त्यानंतर सुदेश आणि विक्रमवर जो अटॅक सुरू केला त्यानंतर हे षटक कदाचित ते नुकसान भरपाईसाठी कारणीभूत ठरू शकतं मोठा फटकारण्याचा प्रयत्न होता आणि नितेश गडेकरला आता माघारी परतावं लागेल नक्कीच अस्तित्वात नसलेली धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि जेव्हा अशा प्रकारची घाई होती क्रिकेटमध्ये तेव्हा नक्कीच तुम्हाला तुमची विकेट गमवावी लागते आणि मात्र दुर्दैवी अशा स्वरूपामध्ये माघारी परतावं लागतंय ते नितेश गडेकरला डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न संकेतकडनं झाला पण तो डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न हुकला व बॉलरने मात्र नॉन स्ट्रायकर एंडला स्टंप्स अप्रूव्ह केले आणि त्याचबरोबर अजून एक फलंदाज बाद धावसंख्या घडली जाते ती अजूनही मात्र 57 धावांवरच शोध आहे 70च्या आकड्याचा पाहायचंय पर्यंत पोहोचेल का डीजे गेल सेकंडरीसाठी इंटरेस्टेड आहेत का हो उत्सुक दुसऱ्या धावेसाठी आणि दुसरी धावे पूर्ण न्यू बॅटर नितेश कांबळी अजून एक पेंडियमच्या भात्यामधील एक अष्टपैलू खेळाडू वेगवान गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर अग्रेसिव्ह बॅटिंग धावसंख्या पोहोचली 59 धावांपर्यंत अजून जर दोन मोठे फटके बसले तर अर्थातच 70चा आकडा होऊ शकतो आणि त्याचबरोबर स्टँड अँड डिलिव्हर स्टँड अँड डिस्पॅच हे काय असतं याच एक सुंदर उदाहरण पेश केलं गवडे साहेबरने वाईड यॉर्करला लागण्याचा प्रयत्न पण त्याऐवजी अगदी बॅटरच्या अगदी समोर हा चेंडू जातोय पहिल्या क्षणाला चेंडू आतमध्ये आणि दुसऱ्या पाकच्या बाहेर 6 धावा धावसंख्या परतीत याचबरोबर केली जाते ती अर्थातच 65 धावांवर पुन्हा एकदा बॅट ओव्हर फिरवली एक धाव घेतली जाईल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि गुरुशनचं एक सुंदर झेल दुसरं झेल एकंदरीत गुरुशनचं सो घुमटेश्वर सालसेट टार्गेट फॉर यू 66 टू विन 65 धावा जमवल्या त्या पहिल्या इनिंग मध्ये शौर्य 11 पेडनेम संघाने आणि एक चांगलं आव्हान ठेवलंय 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 66 नक्कीच एक आव्हानात्मक टार्गेट असू शकतो या मॅच मध्ये आणि विचार केला तर पहिल्या इनिंगच्या हायलाइटचा तर सुरन आणि प्रसाद लवकर माघारी परतले व त्यानंतर साहिल आणि गुरुप्रसादने थोडी काळ जबाबदारी घेतली साहिलने केल्या एकंदरीत आपल्या संघासाठी 12 गुरुप्रसाद ने केल्या 13 धावा महेश भाईडकरची महत्त्वपूर्ण भूमिका 7 चेंडूत 21
गौरेश नागवेकर अर्थात शेवटच्या क्षणी एक मोठा फटका आणि त्याचबरोबर जितेश गडेकर माघारी परतला आणि गौरेश नागवेकरचा एक चांगला फटका ज्यामुळे 65 पर्यंत संघ पोहोचला आणि 66 टू विन 66चं आव्हान ठेवलं जातंय. पाहायचंय ते आव्हानापर्यंत पोहोचू शकेल का. आजच्या दिवशी जर बघायला गेलं तर मतीन खान आणि त्याचबरोबर गुरुशनची चांगली गोलंदाजी, संकेत मोरजकर याची चांगली स्टार्ट आणि अजूनही जर बघायला गेलं तर मेहमूद शेख सारखा फलंदाज अजूनही बाकी यायचा या संघाकडून. म्हणजे बॅटिंगची स्ट्रेंथ काय आहे याच घुमटेश्वर सालसेटने दाखवून दिलंय आणि जरा सामना जिंकायचा आहे तर पुन्हा तेच कार्य करायचंय. पाहायचंय कोण जिंकेल या मेगा मॅच मध्ये, या थ्रिलिंग एन्काउंटर मध्ये. घुमटेश्वर सालसेट किशोर 11 पेडनेम. आवश्यकता आहे ती अजूनही विजयासाठी 66 धावांची. निगळे, पेडणे आणि त्याचबरोबर सिद्धेश्वर सलेली सत्तरी. तरी विनंती करतोय दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण कृपया नाटकासाठी यायचंय. अंकिता क्लासिक, पेडनेम आणि त्याचबरोबर सिद्धेश्वर सत्तरी दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. तो 66 रनों का टारगेट सामने रखा इस मैदान पर इस वक्त घुमटेश्वर मडगांव के सामने. शौर्य पेडणे टीम ने उसके जवाब में गौरेश मैदान पर सामने से
ऑन साइड पास कर लेके ऊपर से सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए। तू नजर रख उसके, चुप, आवाज नहीं। ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट सारे बोला, टाइमिंग देखिए बहुत थोड़ी सी यहाँ पर गफलत मैदान पर, लेकिन उसी के बाद वहां पर गिर को उठाया जाएगा। 1 रन निकला, 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। मतीन जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। 7 रन पहली गेंद पर वो छक्का निकला। अब 59 रनों की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे देखिए बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं बैटिंग करना, और शुरू में एक माहौल पर 50 रन भी बनाए। मतलब अब शायद इस समय पर इस बड़ी मैच में बड़े खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा मैदान पर। पैड पर लगी गेंद, ऑन साइड पर खेलने का पहले प्रयास शुरू किया था, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई और ये डॉट निकलती है गेंद मैदान पर। कोपलेश्वर मडगांव टीम जो कि इस वक्त 66 रन का जो कि पार्टनर जो कि इस वक्त पीछा कर रही है, उसकी जवाब में खेल बन रहा है मैदान पर। जिस तरह से माहौल बन रहा है ना, ये मुकाबला उतना ही बिल्कुल मुश्किल लग रहा है मैदान पर दोनों टीमों के लिए। इस बार रिवर्स क्या टीम, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए मैदान पर। के साथ अपना खाता खोला मैदान पर। पता है कि जब भी बड़ा मैच होगा ना, बड़े खिलाड़ियों को आज बहुत बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी, और ये सोच मैदान पर 13 पर। ऑन साइड पर बढ़िया क्रिकेट, वापस सिंगल निकला, एक समझदारी भरी बैटिंग, 14 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। चौदह पर पहुंचा टीम का स्कोर। हल्का सा अपील शायद लग रहा है कि यहां पर
वापस खेल चलेगा मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। और देखिए मुकाबले में क्या ताकत है इनकी, बातचीत हो रही है मैदान पर। मामला थोड़ा सा 19-20 का था मैदान पर, ऐसा लग रहा है कुछ अपील। चौदह 13 रन प्रति ओवर आपको छोड़ने पड़ेंगे और 14 पर पहुंचा पहले ओवर में टीम का स्कोर। क्या एक बड़ा शॉट वापस देखने को मिलेगा या फिर एक बिल्कुल वापसी मैदान पर गेंदबाज की वहां पर घुंघरू द्वारा। इस बार सीधा ड्राइव किया, सुंदर टाइमिंग वहां पर, लेकिन साथ साथ उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। एक रन बनेगा, 15 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। एक ओवर के बाद 15, कोई नुकसान नहीं। मोर्चे पर जो कि इस्तेमाल रहेगा इस वक्त राजू दाभोलकर सर देख सकता। राजू सर जो कि इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इस मैदान पर। पहले मैच में क्रुशियल बॉलिंग की 1 ओवर 7 रन और 2 विकेट मैदान पर। क्या क्रुशियल बॉलिंग की थी मैदान पर, लेकिन अब सामने संकेत उनके मैदान पर, हवा के बिल्कुल साथ मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट ऑन सेट पर हल्के से देखिए, समझदारी का खेल मैदान में। 1 रन वहां पर बना, 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 16 रन पर। लगभग 13 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। 16 कुल मिलाकर खेल इस वक्त चलता हो इस मैदान का, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। दोपहर का समय और दुनिया धूप के साथ ये मुकाबले की ताकत देखिए। ये खेल बिल्कुल बड़ा मैदान पर इस समय पर। मोहिम मतीन खान मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। सबनान हो इस बार उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। खेल फंसा, क्या आज मुश्किल है लेकिन आसान भी कर सकते वहां पर, लेकिन नहीं, वहां पर बिल्कुल बढ़िया प्रयास। अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी सर की। राजू सर मुश्किल जरूर था लेकिन कुछ पर लगा, आपने आसान कर दिया। ऐन मौके पर कैच छूटा और कैच छूटने के बाद टीम का स्कोर जहां पर वो सिंगल निकला 23 रन पर। तो 23 पर पहुंचा, एक बड़ा शॉट निकला इस ओवर में। देखिए दायर बाएं की जोड़ी मैदान पर, सामने खिलाड़ी फुल टॉस गेंद ऑन सेट पर सिर्फ टाइम किया को मिड विकेट पर। पहला रन बहुत तेज निकला, मतीन के हाथ में पहुंचेगी स्ट्राइक। उस एक रन के साथ 24 की हालत मैदान पर।
देखिए हमने शुरू में कहा था 13 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे, शुरू के आपके पहले 2 ओवर में जो रन रेट चल रहा है ना लगभग 12 रन के आसपास चल रहा है मैदान पर। राजू सर वापस मोर्चे पर रहेंगे, एक बड़ा शॉट उन्होंने खर्चा, एक कैच जरूर छूटा उनका से, वो कैच थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास बहुत ज्यादा। गेंदबाजी में वापसी करना ये बहुत बार जानते, एक हारना में बहुत बार कर भी चुके साहब। फुल टॉस गेंद और सीधे हाथ में मतीन का खेल समाप्त मैदान पर। चौबीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान 66 का पीछा कर रहा है। और देखिए मामला कितना बहुत संगीन है, ये इस समय पर यह मुकाबला बता रहा है कि दोनों की ताकत क्या है इस टीम की। दोनों टीमें बिल्कुल अच्छी मैदान पर, और सरजी ने एक काम कर दिया विकेट लेकर। इस बार सामने खेला उस शॉट को बिल्कुल अच्छा कारपेट कर गेंद निकली लॉन्ग ऑन पर, एक ही रन वहां पर बनेगा। और 2 ओवर के बाद अब लग रहा है कि 25 पर टीम का स्कोर, एक विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। मैदान पर मैदान मुकाबले में स्किल में 41 रन जिससे पीछे। और इस बार ऑन साइड पर को खेला, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर पहला रन बहुत तेज निकला, और जहां से बिल्कुल एक रन निकलता हुआ एक रन के साथ टीम का स्कोर भी मैदान में पहुंचा अब 26 रन पर। 40 रन की अब आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर। मैच मैच इसके बाद का मुकाबला अंकिता क्लासिक डिगड़े और उसके खिलाफ सिद्धेश्वर सनेरी सत्तरी। कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, टॉस के लिए पहुंचे दोनों कप्तान, सो प्लीज रिक्वेस्ट करें। तो चलिए मामला लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी संकेत, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी था वो खिलाड़ी स्ट्राइक पर है। शॉट गेंद कवर बाउंड्री पर, टाइमिंग बहुत सुंदर है और एक्स्ट्रा और सीमा रेखा से गेंद पार निकल रही है 4 रन के लिए।
मैदान पर 36 रन की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। खेल बहुत बड़ा, इस बार ड्राइव किया, फिर से हवा में रखा इनको। देखिए सिर्फ हवा में रखा, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग दोस्तों बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन 2 रन वहां पर आराम से बन जाएंगे मैदान पर। देखिए कवर पर इनको खेला गया, इनसाइड आउट हवा में रखा, टाइमिंग इतनी सुंदर थी ना कि गेंद सिर्फ बाउंड लाइन तरफ जाती, लेकिन वहां पर जो फील्डिंग थी वो फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। 2 रन वहां पर बनते हुए 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। चौतीस रनों की आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे मैच में। 2 शॉट चाहिए मैदान पर, जहां पर यह मुश्किल आसान हो जाए मैदान में। सामने महेश मेड़ी, अनुभव बिल्कुल अच्छा इनके पास रहता है, तजुर्बा, और उसके साथ साथ गति बहुत सुंदर इनके पास रहती है, और गति के साथ लाइन भी अच्छी डालते। तो आज कुछ हद तक वापसी जरूर हुई इस खेल मैच की। फुल टॉस और 6 रन के लिए स्कोर। देखिए मैच बिल्कुल खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, जहां पर वो शॉट लगा और उसी शॉट ने इस मैच में फिर से वापसी कर दी इस वक्त आगे बल्लेबाजों की। ओ खेल फंसा, सीधे खिलाड़ी की तरफ जा रहा है और ये आउट। और साथ साथ दूसरी टीम जो कि मैदान पर 70 टीम कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। समय की थोड़ी सी कमी रहेगी, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप थोड़ा सा जल्दी पहुंचे। पर पहुंचा टीम का स्कोर, कारवा बहुत बड़ा है भाई। यही तो खेल है मैदान में, एक शॉट बनता है तो मुश्किल आसान हो जाएगी। लाइन को दूर रखा, ऑफ के बाहर रखा, वाइड बॉल कैसा मैदान पर पहुंचा और वाइड के साथ 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। विक्रम ऑन स्ट्राइक मैदान पर सामने, जो कि तो महेश मेड़ी एक सफलता हासिल कर चुके। और ये भी दूर खेला शरीर के, लेकिन वाइड बॉल मैदान पर काफी दूर थी गेंद। 2 रन वाइड के रूप में निकल चुके हैं। देखिए दोनों बार दोनों गेंदें वाइड डाली है। अब टोटल स्कोर पहुंचा 40 रन मैदान पर, मतलब 26 रन अंतिम 13 गेंदों पर। क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा इस ओवर में, इस समय पर आवश्यकता है। ओ नहीं, मिस टाइम है, नहीं कैच तो मुश्किल है, शायद बन सकते 2 रन वहां पर। हाँ बिल्कुल बन गए मैदान में। खेल बिल्कुल बड़ा हुआ, 42 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम 12 गेंदे और जीत से पीछे 24 रन, 24 टू विन मैदान पर। इस वक्त घुमटेश्वर मडगांव टीम को बनाने पड़ेंगे और शौर्य टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा, रोकने पड़ेंगे वो रन मैदान पर अगर मैच में अपनी वापसी करनी है तो।
नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा 12 गेंदों पर, जो कि जिससे पीछे 24 रन की आवश्यकता। और लो फुल टॉस, गेंद निकली बल्ले पर लगा स्लिप के बगल से, और देखिए क्या वहां पर अंदर, यहाँ देखिए पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, राउट का मौका और आउट। पहुंच चुका है दिनेश, 11 गेंदों पर 23 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे मुकाबला बिल्कुल कड़क है ये इस समय पर। हो गैप में गेंद, और निकलेगी गैप में, सीमा रेखा से पार, 4 19 रन शायद आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे क्या बड़ा शॉट देखने को इस साइड से, और तोड़फोड़ बैटिंग ऑन साइड पर, बड़ा घुंघरू है वहां पर, मतलब आराम से एक ही रन बनेगा। 1 रन के साथ अब 18 रन, जिससे पीछे मैदान पर 9 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे दोनों टीमों के लिए बहुत कड़क मुकाबला। शौर्य 11 जो कि इस वक्त पेंडिम टीम, और जो कि घुमटेश्वर मडगांव टीम, इनके बीच में मुकाबला, और घुमटेश्वर मडगांव टीम को अब 9 गेंदों पर, जिससे पीछे 18 रन की आवश्यकता मैदान में। घुमटेश्वर सालसेट जो कि इस वक्त रिवर्स क्या टेम, गेंद निकली, थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। अंतिम 8 गेंदों पर मैच ऑन है ये, ठीक है। मुकाबले की ताकत, रिवर्स पर वो शॉट, जो टाइमिंग देखिए, बहुत सुंदर टाइमिंग, खेल बहुत बड़ा है ये। क्या आखिरी के ओवर में लेफ्ट हैंडर रहकर इस मुकाबले को समाप्त कर पाएगा, या फिर अंदाज वही रहेगा इस मौके पर। वापस खेल मैदान में चलता हुआ, बढ़िया क्रिकेट, वापस सही सो जाइए, देखिए सिंगल लेकर वापस जाना चाहिए, राइट हैंडर को मौका दीजिए आप मैदान पर। अब खेल बचा हुआ इस मैच का 7 गेंदों का, और जिससे पीछे यहां पर मात्र 13 रन की आवश्यकता। मैच के दरमियान हमारा खरीद अखिल पर आपका हार्दिक स्वागत। अरे अखिल मेरे को दिख नहीं रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है ये। टॉस के लिए कप्तान पहुंचे, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, हम फिर से आपको बुला रहे। तो चलिए 7 गेंदे और 13 रन, क्या ये बल्ला चलाएंगे आखिरी गेंद में? देखिए इस वक्त हवा के विपरीत अपने लाइन देखिए दूर रखी है, वाइड बॉल, 7 गेंदे 12 रन। इसके बाद का मुकाबला है, कप्तान टॉस के लिए पहुंचे।
अखिल परब का हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। गौराजो का कंप्यूटर स्कोरर जो कि अखिल परब इस समय प्रदर्शनों में बैठा है। सर जी आपका हार्दिक स्वागत मैच के दरमियान। देखिए अब खेल बचावा मात्र 7 का और जिससे पीछे 12 रन की आवश्यकता मैदान पर। हेलीकॉप्टर शॉट हवा में गेंद निकली है, शायद क्या छूटेगा तो 2 रन बनेंगे। हाँ बिल्कुल 2 रन बनेंगे वहां पर और 2 रन के साथ मामला बिल्कुल सेट लग रहा है। अब खेल बिल्कुल बचा हुआ 6 गेंदों का, जिससे पीछे मात्र यहां पर अंतिम 6 गेंदों पर। अंकिता क्लासिक निगड़े पेडने वर्सेस जो कि सिद्धेश्वर सलली 70 कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। छह गेंदे 10 रन। नितेश है कामड़े मैदान पर सामने से। देखिए साल भर में बहुत अच्छे फॉर्म में ये खिलाड़ी, आखिरी क्षण में बहुत बार मैचेस को अपने कब्जे में किया। आखिरी ओवर्स में जो कि नितेश वहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। नितेश कामड़ी में 6 गेंदे और शौर्य इलन पेंडे के रोकने पड़ेंगे इस समय पर, जबकि मात्र 10 रन मैदान पर। और घुमटेश्वर टीम जो इस वक्त घुमटेश्वर 70 है, घुमटेश्वर सालसेट टीम को बनाने पड़ेंगे 10 रन मैदान पर। नितेश कामड़ी जर्सी नंबर 7 पहनकर आईपीएल में जर्सी आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन इस समय पर ये देखने को मिलेगी। सिर्फ एमएस धोनी ने पहन रखी थी और यहां पर इस खिलाड़ी ने एक शॉट लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए विक्रम है। क्या विक्रम आज विक्रम बना पाएंगे इस खेल का? इस मैच को जीतकर अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे या फिर इस मैच को नितेश कामड़ी रोक पाएंगे इस रनों को? फुल टॉस गेंद, टाइमिंग बहुत सुंदर और खेल बिल्कुल गेंद निकली गैप में, सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। गेंदें इस खेल में बची हुई है मैदान पर। अभी भी खेल बचा हुआ मैदान में, क्योंकि अब जाकर इस समय पर मैच का रुख देखिए। 5 गेंदे और 6 रन मैदान पर। फुल टॉस टाइमिंग देखिए बहुत सुंदर। गेंद को खेला गया कवर पॉइंट के बगल से, जहां पर 1 नहीं 2 रन वहां पर बनेंगे। और अब 4 गेंदों पर 4 मैदान में। ये ने टॉस जीता है, ओके, बताया नहीं है क्या करने वाला। 4 गेंदे 4 रन मैदान पर। बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पे, बिल्कुल बेहतरीन माहौल मैदान पर। दोनों टीमों को पता है कि इस वक्त समय की परिभाषा क्या है। समय बता रहा है ना आपको कि ये मुकाबला बहुत दावेदारी का मैदान में। 4 पर 4 बॉलिंग, 4 गेंदे और 4 रन मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद कट किया, बैकफुट पॉइंट पर 1 रन निकला। 1 रन के साथ अब विक्रम पहुंचेंगे नॉस्टैक एंड पर और टीम का स्कोर पहुंचा अब 3 गेंदे और 3 रन मैदान पर। कांटे की टक्कर मैदान पर, बिल्कुल बड़ा मैच। दोनों टीमों जानते हैं 1 विकेट या फिर 1-2 रन 1 गेंद पर मामला बहुत करीब रहेगा। देखिए मुकाबला बिल्कुल अब मैच बिल्कुल फंसा हुआ दोनों टीमों के लिए। देखिए एक भी डॉट गेंद निकलते हैं ना तो बिल्कुल वापसी इस वक्त शौर्य 11 टीम मैदान पर इस वक्त कर पाएगी, पेडने टीम। और घुमटेश्वर टीम की अगर बात बताई जाए,
एक 2 रन, अगर 2 रन एक गेंद पर निकलते या बड़ा शॉट, मैच समाप्त मैदान पर। ये गए, ये देखिए मौका है राउट करने का, और ये आउट मैदान पर। 2 और 3 रन। वापस खेल मैदान में 2 गेंदे 3 रन मैदान पर चलेगा इस वक्त मुकाबला खेल का। देखिए सबसे अहम शॉट कौन सा था ना, वो जो रिवर्स लगाया ना विक्रम ने, वो शॉट सबसे अहम था मैदान पर। उसी शॉट ने मैच में वापसी कर दी, लेकिन उसके बाद वो कवर ड्राइव, उसके बाद वो फुल टॉस गेंद विक्रम ने छोड़ा, एक सिंगल नहीं 2 रन निकाले विक्रम। अब खेल बचा हुआ 2 गेंदों और 3 रन का। बिल्कुल शौर्य 11 टीम जानती है, एक गेंद डॉट, एक विकेट, सब कुछ इस वक्त मैदान में होगा। दिल का मरीज आसपास अगर मैच को देख रहे ना तो दिल थाम ले मैदान पे। ये मैच अब दिल के मरीज को लिए हुआ नहीं है, ये मुकाबला बहुत कड़क है। ये इस समय पर ये बता रहा है, वक्त की बिल्कुल आवाज कह रही है कि दोनों टीमों के लिए बिल्कुल समान मौके है। एक गेंद डॉट, एक आध विकेट, एक बड़ा शॉट, सब कुछ समाप्त है इस मैदान पर। नितेश राइट ऑफ राउंड विकेट से पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेला, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा। और देखिए यहां से तो लग रहा है कि यह मौका रहेगा 1 रन का मैदान पर। आखिरी गेंद और 2 रन जिससे पीछे मैदान पर। आखिरी गेंद, 1 गेंद 2 रन मैदान पर। सुबोध सर आइए, क्या होगा अगर ये मैच टाई होता है तो? हाँ, टाई होता है तो क्या होगा? अभी तक बता रही सुपर ओवर। चलिए ओके, सुपर डुपर ओवर का मैच होगा। अगर 1 रन बनता है तो 2 गेंदों पर, 1 गेंद पर 2 रन चाहिए मैदान में। लेवेंडर विक्रम है, जिस विक्रम ने आखिरी क्षणों पर इस मुकाबले को रिवर्स मारकर मैच में वापसी कर दी। क्या वही विक्रम इस समय पर 2 रन बनाकर इस मैच को जीत के ले जाएंगे? भाई विक्रम नाम ही इसके लिए रखा था कि विक्रम कर सके ये मैदान में। क्या विक्रम आज ये मुकाबले में विक्रम करके अपना विक्रम रूप जो क्या अवतार करेंगे? ये कहना तो आसान नहीं है, क्योंकि मुश्किल है भी तो कहा। वहां पर 2 ही तो रन बनाने मैदान पर जिससे पीछे। आखिरी गेंद 2 रन जिससे पीछे, और ये मुकाबला ऑन साइड पर चिप शॉट हवा में खेला, पहला रन बहुत तेज निकला, सुपर डुपर और का ये मुकाबला रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वहां पर बिल्कुल खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिली मैदान में। भाई रुककर भी थ्रो किया जाता तब भी मौका था, क्योंकि विक्रम जब आपके हाथ में थ्रो था ना बिल्कुल प्रसाद, तब विक्रम नॉनस्ट्राइक एंड पर खड़े थे। अगर आप वहीं से आराम से थ्रो करते तब भी विक्रम आउट था। लेकिन मैन ऑफ द मैच का दावेदार भी मेरे अंदर से विक्रम ही रहेगा, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल कड़ा गया। अब चलेंगे बिल्कुल इस वक्त स्कोर के पास, कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर?